અને અમને પોતાની પ્રવચન ધારામાં રીઝવવાનો યોગ્ય ગણ્યા. ગુરુદેવ, અમે આપનો ઉપકાર ક્યારે નહીં ભૂલી શકીએ. અમારી આપને વિનંતી છે, આપ આ જ રીતે અમારા પર કૃપા વરસાવતા રહેજો. હવે આપણે સૌ પૂજ્ય ગુરુદેવને સાંભળીએ. આપણે ગુરુવંદન કરીએ. હાજી. इच्छामि कमाशनु वंदे उजावणी जय निस्याय मथेन वंदामि. इच्छामि कमाशनु वंदे उजावणी जय निस्याय मथेन वंदामि. इचकार सुदेवसी सुख तप शरीरनाबाद सुख समजम जातवा नियो जोजी स्वामी साता छेजी વાત પાણીનો લાભ દેજોજી. इच्छामि कमाशनु वंदे उजावणी जय निस्याय मथेन वंदामि. इच्छा कारण संदिशा भगवान अभूते अभंतर देवसीय कामे इच्छम कामेमी देवसीयम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे वीणे व्यवच्छे हलावे सलावे उच्चासनाय समासन तरवसे उड्वसे जंकिनी मंजुना प्रेम सोमवार वर्मा तुबे जणम जणम तस्मिच्छामि दुकडम. इच्छामि खमाशु वंदे उजावणी जय निस्याय मथेन वंदामि. स्वामी साता छेजी देव गुरु साहेब સાતામાં સાહેબ હાજી. જયેશભાઈ Yes. I want to introduce you to our community. Jayeshbhai is a doctor by profession. He's from Los Angeles, and he's been doing a philanthropic humanitarian job for a long time. So we like to hear from you, Mr. Jayeshbhai. Jai Jinendra. Gurudev Mathen Vandami and a Koti Vandan. And pranam to all the community members from all over the world. Hope all of you are doing very well, and it is our pleasure that within a very short notice and request from Enprop Sangh and all of us, Gurudev has accepted our request to address us. આપણે સૌ માટે ગુરુદેવના ખૂબ જ આભારી છીએ, એના માટે એમના ખૂબ ઋણી છીએ. આપણા માટે આચાર્યશ્રી તો એટલા વેલ નોન છે કે એમની ઓળખ આપવી એ અનુચિત ગણાય, પણ તો પણ હું ટૂંકમાં કહું તો 19 વર્ષની કુમળી વયે આચાર્યશ્રી ભુવન ભાનુ મહારાજ સાહેબની નિષ્ઠામાં એમણે દીક્ષા લીધી અને એમણે એમના સાધુ જીવનનો પ્રારંભ કર્યો. તેમણે પોતાના 54 વર્ષના દીક્ષા પર્યાયમાં ખૂબ જ ધર્મ પ્રભાવના કરેલી છે. એની સાથે સાથે એમણે સમાજ ઉદ્ધારનું પણ ખૂબ જ કામ કરેલ છે. સોશિયો ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ એન્ડ સોસાયટી માટે એમણે ઘણું જ યોગદાન આપેલ છે અને એ આપણા માટે ગૌરવની વસ્તુ છે કે એમના આ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ધી ફિલ્ડ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી માટે ભારતની સરકારે એમને પદ્મભૂષણના એવોર્ડથી નવાજેલ છે. જેમ આપણા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબે જેમ કહ્યું વિજયભાઈ, એ રીતે એમણે એમના 380 જેટલા પુસ્તકો લખ્યા છે. એમાંથી ઘણા બધા પુસ્તકો 20 જેટલી જુદી જુદી ભાષામાં એમનું રૂપાંતરણ પણ થયેલું છે. અને એમાંથી એક પુસ્તક તો ખૂબ જ પ્રચલિત છે કે જે લખી રાખો આરસની તકતી ઉપર. આ પુસ્તક ખૂબ જ પ્રચલિત અને લોકપ્રિય થયેલું છે. આ ઉપરાંત પણ ભારતમાંથી મીટનું બાન કરાવવા માટે એમણે ભારતની સરકારને એમણે અનુમોદના અને પિટિશન કરેલી છે. અને ગુરુદેવ ઇઝ લાઈક વન વિઝનરી એન્ડ યુગ દ્રષ્ટા છે. અને એમની સ્પષ્ટ વચન શૈલીવાળી અમૃતવાણીમાં એટલું બધું ઊંડાણ હોય છે કે એમના પ્રવચન અને માર્ગદર્શનથી ઘણા લોકોના જીવનમાં મોટા પરિવર્તન આવેલ છે. ચાલો આપણે ગુરુદેવને વિનંતી કરીએ કે એમની સરળ અને સચોટ વાણીમાં એમના જ મુખ્યથી આપણે વોટ નેક્સ્ટ, પીસ, હેપીનેસ એન્ડ લવ એવા ખૂબ મહત્વના વિષય ઉપર ગુરુદેવ આપણને પ્રવચન આપે અને આપણે શાંતિથી સાંભળીએ. તો ગુરુદેવ આપને વિનંતી કે એમને તમારી વાણીનો લાભ આપો અને પ્રકાશો. નમો નમો સિદ્ધાણ નમો હરિયાણ નમો જૈન નમો લેશબદાવણમ એસો પંચરમુકારો સબભાવપણ સમમગ્રણ જદ ભેજમડમમ વૈ મંગલમ નમો દુર્વાર રાગાદિ મૈરી વારરિ વારિને હરહૃદય યોગીનાથાય મહાવીરાય તાયિને જય જગજીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાહો જગબંધુ
जय जगत्प्रियामहो वैभवो जय स्वर्णं पवमो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महत्ता महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो धिय पौमा वै पमुनिसेव्यकाय ओम क्लीं ब्रह्म सिद्धिं करेउ सिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गरीब आदमी अपने जीवन में वो समझता था कि मेरे जीवन में मैं दुखी हूं, इनका कारण मेरे पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद जब अपने पास संपत्ति अर्जित करने में वो निष्फल रहा, किसी ने एक संत का एड्रेस दे दिया, शायद तेरी समस्या का समाधान वो संत कर सकते हैं। संत के पास गया, नतमस्तक होकर विनती की, महाराज साहब बहुत दुखी हूं। संत ने ही पूछा, मेरे से क्या चाहता है? बस चंद रुपये मिल जाए और अपना जीवन मजे से चले। सन्यासी ने रास्ता दिखा दिया, एक काम कर, ये पूरा गांव खत्म होता है, वहां से गली है, गली के कोने पे जाना, एक खड्डा है, खड्डे में से मिट्टी निकाल देना, वहीं सब रुपये ही रुपये पड़े हैं। और वो गया, रुपया लेके वापिस आया। रिक्वायरमेंट के लिए गया था, मगर संपत्ति आने के बाद डिजायर में रिक्वायरमेंट, डिजायर भी है, रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई, रोटी चावल की बात खत्म हो गई, झोपड़पट्टी में सब ठीक रहा, मगर उसके मन में एक भाव आया, और भी थोड़े पैसे होते तो सुटेबल व्यवस्था मेरी बन जाती। और उसको लगा फिर किसी और के पास जाना ठीक नहीं है, संत के पास ही चले जाऊं। मैं शॉर्ट में ये एग्जाम्पल खत्म करूंगा। संत के पास गया, संत को ने पूछा क्या हो गया? महाराज साहब पैसे तो मिल गए, दे भी दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर बिजनेस के लिए और भी थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं अपने पैर पे खड़ा रह जाऊं। संत ने बोला कोई दिक्कत नहीं, और 2 गली आगे चलना, चांदी मिलेगी वहां। ये आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रुपया मिल गया, फिर चांदी मिल गई, फिर सोना भी मिल गया। सोने मिलने के बाद उसको लगा और भी मुझे मिले, संत के पास चला गया, संत ने हीरा माणिक मोती दिखा दिया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, रुपये मिलने के बाद रुकानी, चांदी मिलने के बाद रुकानी, सोने मिलने के बाद रुकानी, अभी हीरा माणिक और मोती लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में रुक गया। सोचने लगा कि कुछ मान लिया, कितने रुपये के लिए मैं संत के पास गया था, वो मिलने के बाद ये तो इच्छा बढ़ती चली, बढ़ती चली, बढ़ती चली, एंडलेस ग्रीड। और एक बार उसको लगा कि नहीं, कम बैक। आज मैं पूछना चाहता हूं व्हाट नेक्स्ट? हीरा मिलने के बाद क्या होगा, वो उसने सोचा और वापिस आ गया। वापिस आने के बाद संत को बिल्कुल उम्मीद थी यही रिवॉल्यूशन आएगा, और संत ने पूछा हीरा माणिक मोती तक नहीं पहुंचा, खदान है, चाहे करोड़ों रुपए का हीरा मिल सकता है, मगर अभी उसने जो प्रश्न पूछा वो मैं आपको पूछना चाहता हूं। और उसने संत को कहा महाराज, रुपये की वैल्यू क्या है आपको पता है, चांदी की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता है, सोने की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता है, वो सब एड्रेस आपने दिखा दिया, और हीरा माणिक और मोती का एड्रेस भी आपने मुझे दिखा दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप सब कुछ जानते हो, हीरा माणिक मोती इतने भरे पड़े हुआ सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप आपकी जगह पे बैठे हो और मुझे हीरा माणिक मोती का एड्रेस देते हो, दैट मीन्स आपके पास ऐसी कोई चीज है जो हीरा माणिक मोती को भी निगलेक्ट कर सकती है। तो मुझे एक काम करो, आपके पास जो चीजें हीरा माणिक मोती को निगलेक्ट कर सकती है वही चीज मुझे आपसे चाहिए, और संत के चरण में बैठ गया। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट क्या? साइड इफेक्ट
ये ले तो लेता हूं मैं गोली, मगर आप बता पाएंगे कि साइड इफेक्ट क्या है? तो हर क्षेत्र में तुम साइड इफेक्ट ज्यादा, व्हाट नेक्स्ट? आपने बता दिया ये गोली ले लेना, मगर गोली लेने के बाद क्या होगा वो भी तो डॉक्टर साहब बता दो। और डॉक्टर यदि बता दे सर का दर्द खत्म हो जाएगा मगर हेमरेज हो जाएगा, आप गोली लेंगे क्या? सर का दर्द खत्म हो जाएगा मगर में भी पॉसिबल ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप गोली को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आप चाहते हो व्हाट नेक्स्ट। ये सबसे पहले तो आपके सामने पहला नंबर का विकल्प में 5 स्टेप की बात यदि समय रही तो आपके सामने करूंगा। नंबर 1, बिफोर रनिंग, भागते फिरते हो बिफोर रनिंग, एक बार चेक करो व्हाट नेक्स्ट। आप हिंदुस्तान छोड़ के दुबई गए, जो भी है आपका कारण, व्हाट इज योर पर्पज, यू नो एवरीथिंग। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, दुबई गए, एंट्रोप गए, जहां भी गए वहां मान लिया कि आप संपत्ति के लिए गए, कोई विरोध नहीं, चलो। मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट नेक्स्ट आफ्टर रनिंग, नॉट बाय वॉकिंग। भागते फिरते हो भागते फिरते हो भागते फिरते हो, 24 घंटे पैसे 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 चाहिए, कोई विरोध नहीं है, मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी। आप दावा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी, दावा के साथ बोल सकते हो? आफ्टर रनिंग, बिफोर रनिंग एक बार चेक तो कर लो कि मान लो आपका टारगेट पूरा हो गया, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ का टारगेट, आपका टारगेट यदि पूर्ण हो गया, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्या? मेरे सामने तुम बैठे हो, आपका कोई जवाब मुझे मिलने वाला नहीं, मैं समझता हूं, मगर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। ये सब बढ़ने के बाद आपका पुण्य बढ़ गया, आपका पुरुषार्थ बढ़ गया, मान लिया कि तुम सफल काफी बन गए, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आउटपुट में आपके पास 3 चीज यदि बची है, नंबर 1 पीस, नंबर 2 हैप्पीनेस एंड नंबर 3 लव। आप ये दावा के साथ बोल सकते हो कि पैसा बढ़ने के बाद शांति 100% गुरुदेव बढ़ती जा रही है, प्रेम हमेशा बढ़ते जा रहा है और प्रसन्नता भी हमारी गुरुदेव क्लाइमैक्स पे जा रही है। यदि ये 3 चीज आपके पास कम होती जा रही है, पीस जो थी वो भी कम, हैप्पीनेस थी वो भी कम, और लव दुश्मन के प्रति भी आपका प्रेम था, खुद के भाई के प्रति भी यदि शंका बढ़ती जा रही है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिफोर रनिंग आपने रिएक्शन कभी चेक किया था? भागता तो हूं मगर व्हाट नेक्स्ट? दौड़ता था तेरे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ નથી, दौड़ता था तेरे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ નથી। इतना पुण्य आपका बढ़ते जा रहा था, पुरुषार्थ आपका जबरदस्त था, भागते ही चले भागते ही चले भागते ही चले, जहां भी हाथ डाला वहां आपको सफलता मिली। मगर फ्री टाइम में यदि तुम बैठे ऑन द एज ऑफ 60, 65, 70, बाल सफेद हो गए और अभी एक बार कोने में बैठ करके तुम चेक करो तो पता चले आपको भी शायद यही बोलने का मौका मिलेगा, दौड़ता था ત્યારે લાગતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ શાંત બેસીને જોયું ત્યારે ખબર પડી જે દોડ્યા એનો કોઈ अर्थ નથી। क्या पाया तुमने? मैं ये नहीं कहता संसार में तुम बैठ दो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली एवरीथिंग, मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर सब कुछ करने के बाद जे दौड़्या एनो कोई अर्थ नहीं। बैंक बैलेंस बढ़ गई, एफडी बढ़ गई, मगर हृदय धीरे 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 आपका कमजोर बनते चला। तो मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने बिफोर रनिंग नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? ओलंपिक में दौड़ने वाला, आपको मालूम नहीं दौड़ने का तो ओलंपिक में भी रहता है, मगर ओलंपिक में दौड़ने वाला कहीं रुकता है, पैसे के पीछे दौड़ने वाला कहीं रुकता ही नहीं है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी मैं ब्रिज कैंडी में जाके आया, आप प्रामाणिकता से जवाब देना मुझे। शायद मैं मानता हूं पहले इंडिया रहते थे आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, कोई भी तो इंडिया रहते थे और तुम गए, और तुम कोई धर्म करने के लिए तो दुबई लंदन अमेरिका नहीं गए, ये तो बिल्कुल पक्का पता है।
आप धर्म करने के लिए तो वहां नहीं गए, ये हिंदुस्तान तुमने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी करियर बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। चलो मान लिया, मगर मैं आपको मालूम नहीं है अभी ब्रिज कैंडी जाके आया, ये उपास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, गर्मी भी लग रही है, उपास में एसी भी नहीं है, और ब्रिज कैंडी में एवरीथिंग वाज द गुड गोइंग, एसी भी था। सच बोलो, मेरा स्वास्थ्य जैसे अच्छा हुआ, मैं ब्रिज कैंडी छोड़ करके उपास में चला आया, क्योंकि ब्रिज कैंडी गया था, कोई पर्पस था, वो खत्म हो गया। मैं अपने आप से फिर उपास में वापिस आया, जहाँ एयर कंडीशन नहीं है, गर्मी भी है, सब कुछ है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यदि तुम पैसे के लिए इंडिया छोड़ के दुबई, लंदन, अमेरिका कहीं भी गए हो, और यदि आपका कॉन्शियस कहता है कि जिस गोल को लेकर गए थे वो गोल अभी हमारा पूरा हो गया, तो फिर इंडिया वापिस आने में आपको कौन रोकता है? मैं ब्रिज कैंडी छोड़ के वापिस आ गया, तुम अमेरिका छोड़ के वापिस इंडिया क्यों नहीं आते? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आपके पास इनका कोई रीजन है तो मुझे बताओ। बिफोर रनिंग व्हाट नेक्स्ट, एक बार चेक कर लो। बड़ी वेदना से कहना चाहता हूं, कहीं रुको। मैंने किताब लिखी थी फिनिश लाइन, कहीं रुको, कभी रुको। On the age of 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, on the age of 75 come back, बोल दो कि बस फुल स्टॉप, और अभी आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, या तो वहां रुक जाओ, या तो ऑन द फिगर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, कब तक भागेंगे, कितने फिगर तक भागेंगे, और कहां तक जाएंगे? तो पहले नंबर का विकल्प मैंने आपके सामने रखा, व्हाट नेक्स्ट बिफोर रनिंग। We are really happy। 75 साल के बाद भी मैं प्रवचन करता हूं, भागता नहीं हूं, और चाहे मैं भागता भी रहता हूं, मगर मेरे जीवन का गोल फिक्स है, पीस, लव एंड हैप्पीनेस। इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नेवर। आप इतना बोलो, जहां मेरी शांति डिस्टर्ब होती है, मेरी प्रसन्नता जहां भी डिस्टर्ब होती है, और मेरा प्रेम कहां भी कमजोर पड़ता है, उसी टाइम गुरुदेव मैं अपने आप को रोक लेता हूं। छोटी सी बात, इंडिया में प्रवचन किया तब, गत साल मैंने एक प्रवचन में इसी बम्बई का एग्जाम्पल दिया था, आपको वो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मुंबई में नवी मुंबई से एक एरिया है, करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर बहुत बड़ा बनाया था एक भाई ने, और इनका मित्र रहता था अमेरिका। 10 साल के बाद वापिस उनको मिलने के लिए, आफ्टर 10 इयर्स, उसने सब पता लगा था कि बहुत बड़ा अंपायर मेरे मित्र ने बनाया है, एक बार जाऊं, मिलूं, गले लगा दूं, और बोल दूं कि यार मैं अमेरिका में वो तरक्की नहीं कर पाया, वो तरक्की तूने इंडिया में कर दी, कमाल कर दिया। दिस इज अ लाइव एग्जांपल फॉर यू। और वो आया, एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया था वो, मगर उसने जो कल्पना कर दी, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, उदासीनता थी। मिला, मगर मिलने में जो उष्मा होनी चाहिए वो उष्मा नहीं थी। गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ करके उसके एम्पायर तक गया, रास्ते में बहुत कुछ बजा, ठीक हो, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड गोइंग, कोई विरोध नहीं है। और इतना होने के बाद जब 2 घंटे में बातचीत करते चला, मगर चेहरे पे चमक नहीं आई, तब उसने पूछा, आफ्टर ऑल व्हाट इज द पोजीशन? तब उसने बोला, एक काम कर, मेरी चैम्बर में चल। और चैम्बर में गया। चैम्बर में जाने के बाद ड्रॉर खींच करके एक कागज था, वो कागज निकाल के उसको दे दिया, ये पटले कागज। और जैसे ही कागज पड़ा, कागज हाथ से नीचे गिर गया, और इतना ही पूछा, ये सच है? बिल्कुल सच, बिल्कुल 1% गलत नहीं, लेबोरेटरी का लैब का रिपोर्ट है। 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर बनाते बनाते 10 साल में तूने अमेरिका में तरक्की नहीं की, इतनी तरक्की मैंने 5 साल में कर दी, मगर आफ्टर ऑल ऑन द एज ऑफ 35 4 स्टेज का कैंसर आ चुका है। व्हाट नेक्स्ट बिफोर रनिंग?
1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर तो बन चुका, मगर 4 स्टेज का कैंसर डॉक्टर ने बोला है बस अभी अर्थी निकलने के लिए बस आपका समय आ चुका है। ये 1 लाख स्क्वायर फीट अंपायर करूं तो भी क्या करूं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हो तुम? लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बनने के बाद भी तुम अभी भी भागना ही भागना ही भागना ही, कहीं रुकने की बात नहीं। आपके परिवार के साथ बैठने का समय नहीं आपको। आप बोलते मैं भागता हूं, कहां मगर? आज आपके लिए 5 सीढ़ी की बात करूंगा। पदार्थ के पीछे, प्रेम के पीछे, प्रशंसा के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागने पहले एक बार चेक करो व्हाट नेक्स्ट। તમે મને એટલું તો કહો, પૈસા વધ્યા પછી ભૂખ વધી કે ઘટી? પૈસા વધ્યા પછી 6 રોટલીની બદલે 8 રોટલી ખાઈ શકો છો એવું લાગે છે? પૈસા વધ્યા પછી પ્રેમ વધ્યો, ભૂખ વધી, શાંતિ વધી, ઊંઘ વધી, શું વધ્યું? શું તમારી આગળ ક્લેશ વધ્યા? यदि ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप ये मत, ये प्रवचन सुनने वाले ये मत सोचना कि महाराज साहब पैसे के खिलाफ है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तुम जहां बैठे हो वहां मैं मानता हूं कि विदाउट मनी आपका संसार नहीं चलता है, मगर मेरा सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है, यू हैव टू लिव विथ मनी, नॉट फॉर मनी। सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी खोपड़ी में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा चलता है। ये क्यों? मगर नंबर 1, व्हाट नेक्स्ट? एक बार सोचो बिफोर रनिंग, भागने के लिए। हमारे वहां पैसे के लिए भी समय आचार्य भगवान ने तय किया है। श्रावक दोपहर की अष्टप्रधानी पूजा करने के बाद आजीविका के लिए निकलेगा और बिफोर सनसेट ही विल कम बैक। ये समय तय किया है हमारे वहां। आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने आपको पैसे के लिए भी समय तय किया है, नॉट बिफोर 12 o'clock, नॉट आफ्टर सनसेट। सच बोलो, इतना आप संभाल देते हो? सुबह उठने के बाद भागते हो, रात को सोते वक्त अरे सोने की भी बात छोड़ो, यही पूरे दिमाग में चलता है। मैं बड़ी वेदना से आपको कहना चाहूंगा, इसी इंडिया का एक डॉक्टर मांडके करीबन कितने साल पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं, ही वाज द ओनली 35 अबाउट, और उसके मन में एक एम्बिशन थी कि ऐसी हॉस्पिटल मुंबई में बना दूं कि दुनिया देखती चले। सुबह का ऑपरेशन जसलोक और शाम का ऑपरेशन गल्फ की कंट्री में, बस ऐसा भागता था। पैसा 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 बनाने की बात, वो इतना भागता था। मैं फिर से व्हाट नेक्स्ट बिफोर रनिंग, इतनी आपाधापी के बाद एक दिन ऐसा आया, गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल में जा रहा है, ऑपरेशन तय है, ऑपरेशन थिएटर में फोन कर दिया, और ये चालू गाड़ी में गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने बोला सब तैयारी कर दो। और डॉक्टर ने बोला सबको तैयारी, असिस्टेंट डॉक्टर ने बोला, नर्स ने बोला एवरीथिंग इज रेडी, आप आ जाओ, पेशेंट तैयार है। उसने बोला पेशेंट नहीं, मैं खुद पेशेंट हूं। इतना हार्ट पेन हो चुका था डॉक्टर मान के। 35 साल की उम्र में करोड़ों रुपया प्राप्त करने के बाद एक हॉस्पिटल बनाने की वो चाहता था, और अपनी ही हॉस्पिटल में जाते प्रीमाइसिस में गाड़ी पार्क की, और चारों ओर से लोग दौड़ते आए और स्टीयरिंग व्हील पर सर झुका दिया और वो खत्म हो गया। आप ये चाहते हो क्या? आफ्टर रनिंग, ये 35 साल की उम्र में उसकी धर्मपत्नी ने डिक्लेयर किया था कि मेरे पति जैसे प्लीज कोई भागो मत। आज मेरे सामने तुम आए में आनंद है, मगर मेरी ओर से एक राय है आपको, आफ्टर 50 पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता 3 વધારો। ऑन द एज ऑफ 50, आफ्टर 50, जो भी मेरा प्रवचन अभी सुन रहे हैं, यदि इफ दे आर आफ्टर 50 वहां तक पहुंच गए हो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी पुण्य बढ़ाओ, अभी प्रेम बढ़ाओ और अभी प्रसन्नता बढ़ाओ, तो मैं मानूंगा कुछ जीवन में तुमने कुछ पाया है। नंबर 1, व्हाट नेक्स्ट बिफोर रनिंग। नंबर 2, व्हाट नेक्स्ट बिफोर रिएक्टिंग।
कहीं किसी ने खुद भी बोला और आपने रिएक्ट किया, व्हाट नेक्स्ट? करीबन करीबन परिवार टूट रहा है, नॉट बिफोर रनिंग बट बिफोर रिएक्टिंग। कुछ भी तुम्हारे सामने हुआ और रिएक्ट तुमने जो कुछ भी किया, आपको मालूम है महाभारत की कथा यदि तुमने सुनी हो, एक बना हुआ महल जिसमें दुर्योधन चल रहा था और चलते 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 वो व्यवस्था ऐसी थी कि वो समझ नहीं पाया कि यहाँ पानी है कि फ्लोर है, और दुर्योधन का पैर फिसल गया। फिसलने के बाद बैलेंस गया और बैलेंस गिरने के बाद नीचे जहां गिरा वहां पानी था और ऊपर द्रौपदी देख रही थी। और ये दुर्योधन का ये फिसलना उनके सामने द्रौपदी ने जो रिएक्ट किया, जरूरी थी। ये शब्द द्रौपदी के मुंह से नहीं निकला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर द्रौपदी से मुंह से एक शब्द निकल गया, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। ये द्रौपदी का रिएक्टिंग क्या तबाह मचा दी, तुम्हें मालूम होगा। भर सभा के बीच में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, सबके बीच में द्रौपदी के वस्त्रहरण उसने कर दिया। ये एक ही चीज था, रिएक्ट। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट नेक्स्ट। आज जब भी किसी एक क्रिया के सामने प्रतिक्रिया देते हो, एक्शन के सामने रिएक्शन देते हो, तुमने कभी सोचा कि इनका रिएक्शन क्या आ सकता है? बस हम ऐसे ही भागते चलते हैं, मुंह में जबान है, ईगो है हमारा, मान लिया मेरे पास पुण्य जबरदस्त है और सीधा हमने बोल दिया। कभी तो रिएक्टिंग के पहले एक बार चेक करो व्हाट नेक्स्ट। मैं आपके सामने प्रवचन करता हूं, बहुत सोच के मैं बोलता हूं। क्षमता तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने की है, मगर मैं सोच के बोलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि सुनने वाले की मानसिकता क्या हो सकती है और उनको लेकर के। सच बताऊं, परिवार में करीबन करीबन यदि शांति नहीं हो, संघर्ष इनका बहुत मे भी पॉसिबल, बहुत कुछ कारण होगा, मगर एक कारण ये भी है, रिएक्टिंग विवेक नहीं है, कुछ देखने की तैयारी नहीं। पिताजी ने बोला और बेटे ने सीधा जवाब दे दिया, पति ने बोला और पत्नी ने सीधा जवाब दिया, बायर ने बोला और व्यापारी ने सीधा जवाब दिया। और यही तूफान के बीच में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, थोड़ा रिएक्टिंग के लिए आपके सामने दो विकल्प देता हूं, प्रतिक्रिया और प्रतिभाव। आपके सामने कोई तुरंत करे, उनका तुरंत जवाब दो, वो है प्रतिक्रिया। और आफ्टर सम टाइम यू आर गिविंग आंसर, ये है प्रतिभाव। आप एक काम करो, प्रतिक्रिया मत करो, कम से कम प्रतिभाव के लिए यू हैव टू वेट फॉर 2, 3, 5, 4, 7 मिनट्स या तो 10 मिनट्स बिफोर रिएक्टिंग व्हाट नेक्स्ट। मैं बोल तो लूंगा, बोलने के बाद क्या होगा, कर तो दूंगा, करने के बाद क्या होगा, सोच तो लूंगा, सोचने के बाद क्या होगा। एक ऐसा सोचा और कर्म बंद हो गया तो अब हम तो जैन हैं, हम मानते कि हमने जो सोचा वो होगा ही होगा, कर्म बंद तो हो जाएगा। तो रिएक्टिंग के लिए आपके पास थोड़ा विजन हो और वेट करने की आपके पास क्षमता हो तो बहुत कुछ आपके जीवन में भी बच सकता है। मैं बताऊं, एक संत के प्रवचन में 1 लाख की सभा थी और एक लड़के को न मालूम क्या हो गया और उसने चालू प्रवचन में खड़े होकर संत को कह दिया कि आपकी मां वेश्या थी। रिएक्ट कर सकते थे बहुत कुछ संत। 1 लाख की सभा के बीच में एक लड़के की औकात, मेरी मां को वेश्या बोल सकता है, मगर वो संत थे। सुनने वाले सब गर्म हो गए। वो लड़के को गले से पकड़ा, हरामखोर समझता क्या है। संत ने बोला रुको यार, मैं करता हूं रिएक्ट। और संत ने वो रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया नहीं मगर प्रतिभाव। आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम्स, great conqueror does not fight on small issues.
और संत ने बोला दोस्त तूने जो बोला रिपीट कर, और ये शब्द दोबारा बुलाना, दोबारा बुलाया, एक बार बोल। और वो लड़के ने शरारती से कहा कि तुम्हारी मां वेश्या थी, और संत ने वो रिएक्ट किया कि एक बात तुझे मैं कहना चाहूंगा, मेरी मां वेश्या थी कि नहीं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अभी शांत हो गई है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि मेरी मां वेश्या थी, मैं प्रभु से विनती करूंगा मेरी मां को माफ कर दे। यदि मेरी मां वेश्या थी, मैं प्रभु को विनती करूंगा कि मेरी मां को माफ कर दे। और यदि मेरी मां वेश्या नहीं थी, मैं प्रभु को विनती करता हूं तुझे माफ कर दे। ये ताकत, मां वेश्या थी तो मैं प्रभु को विनती करूंगा इनको माफ कर दे, और मां वेश्या नहीं थी तुझे भगवान से कहता हूं तुझे माफ कर दे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आपके परिवार में कम से कम इतनी व्यवस्था है, नो प्रतिक्रिया बट प्रतिभाव, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू फैमिली मेंबर्स। हिंदुस्तान में घनी वार प्रवचन में बात करी छे, बात आज तमने पण करी दो। हिंदुस्तान की कोई जेल में एक लड़का बंद था, शायद अमेरिका में, लंदन में कहीं भी जेल की तो व्यवस्था होती होगी। 5 बजे के बाद जो कैदी था, कैद में था, उसके परिवार को मिलने की सम्मति मिलती है खिड़की से। और एक कैदी ऐसा था 12 साल से जेल में बंद था, कोई मिलने के लिए नहीं आया। वो जेलर हैरान, उसको लगा इसको मिलने के लिए कोई आता ही नहीं, बात क्या है। और एक दिन वो कैदी को मिलने के लिए गया जेलर, और जेलर ने कैदी को पूछा, भाई किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी पत्नी, किसकी लड़की, किसका भाई, किसके चाचा, सब कोई मिलने के लिए आते हैं, तुझे कोई मिलने के लिए आते नहीं, तेरे संबंधी में कोई मिलने के लिए नहीं आते, क्या कारण क्या है, कोई संबंधी नहीं है। और वो कैदी ने बोल दिया, सब संबंधी जेल में ही है, कोई बाहर है तो मिलने के लिए है ना, सब अंदर ही बंदे मेरे साथ। हम यही तो पूछना चाहते कि आपके परिवार की मानसिकता, आ प्रवचन जेटला पण सांभळे छे ए बधाने मारो एक प्रश्न छे, तमारा पोताना नेचर ऊपर तमारो परिवार सिग्नेचर करी आपे तो तमे सफल छो। तमारा पोताना नेचर ऊपर तमारा परिवारनो एक एक सभ्य सिग्नेचर करी आपे तो मानी लो कि तमारू जीवन सफल छे। यू कैन गिव मी प्रॉमिस, मारा साहेब घरमां वडील छुं, मारो दीकरो, मारी दीकरी, मारी पत्नी, मारी बा, मारा बापूजी नीचे 100% सही करी आपे छे कि माय नेचर इज वेरी गुड। तमारी अगर आटलू सर्टिफिकेट हूँ तमने सर्टिफिकेट आपू ये नहीं, परमात्मा को सर्टिफिकेट दे वो नहीं। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके परिवार के 3, 4, 5 सदस्य जो भी हो, और यदि वो कागज पे साइन कर दे कि योर नेचर इज वेरी गुड, आप जीत गए जीवन। क्या पाया तुमने, क्या सारी दुबई में, सारे ऑस्ट्रेलिया में, सारे लंदन में, सारे अमेरिका में, सारी हर जगह तुम्हारी गुडविल है, परिवार में क्या। अने तमारे लखवो तो लखी दो, प्रेम बहु ऊंचो छे, तमारे ऊंचाई वधारवी पड़शे। हिमालय इतना बड़ा है, हिमालय कभी छोटा नहीं होता है, अपने को ही तो बड़ा होना पड़ता है, वहां अपने को ही पहुंचना पड़ता है। आप बोलो हिमालय तो बहुत बड़ा है, मैं ऊपर तक नहीं जा पाता हूं, आपको जाना ही पड़ेगा। तमारी अगर डायरी अने कागळ होय अने तमे लखवा मांगता हो तो लखी दो, जिंदगी भर तमने काम लागशे। तमे प्रेमना नामे छेतरपिंडी तो नथी करी ने। आई लव यू बोलवू सहेलू छे। तमने प्रेमनी थोड़ी व्याख्या बताई दूं, प्रेम शू करी सके, प्रेम शू रिएक्ट करी सके। प्रेम बहु ऊंचो छे, ऊंचाई तमारे वधारवी पड़शे। प्रेम बहु ठींगणो छे, गर्दन भी झुकीने तमारे बात करता सीखवी पड़शे।
કોન્ટ્રાવર્સી, પ્રેમ બહુ ઊંચો છે, તમારે ઊંચાઈ વધારવી પડશે. પ્રેમ બહુ ઠીંગણો છે, ગરદનથી ઝૂકીને વાત કરતા તમારે શીખવું પડશે. નંબર 3, બહુ વજન પડે છે પ્રેમનું, થોડી હળમાશ જાતમાં ઉમેરવી પડશે. બહુ વજન પડે છે પ્રેમનું, થોડી હળવાશ જાતમાં ઉમેરવી પડશે. એગ્રેસિવ માઇન્ડ નહીં ચાલે, હળવા ફૂલ બનવું પડશે તમારે. અને તમને ખબર નહીં તો કહું છું, ગુજરાતીમાં ઈનો આવે છે ને, ઈનો અમેરિકામાં આવે છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ અહીંયા ઈનો આવે છે, ENO. એ ઈનો એવો છે કે કેકથી માંડીને સમોસાને મોટા કરે, જેમાં તમે ઈનો નાખો બધું ફૂલતું જાય. અને ઈગોમાં ખાલી અહમ ફૂલે, બાકી કઈ ફૂલે નહીં. ઈનોમાં કેક ફૂલે, સમોસા ફૂલે, ઘણું ફૂલે. ઈગોમાં તમારી ખાલી ખોપરી ફૂલે, બાકી કઈ ફૂલે નહીં. બહુ વજન પડે છે પ્રેમનું, થોડી હળવાશ ઉમેરવી પડશે જાતમાં. અપેક્ષા એ પ્રેમની બાય પ્રોડક્ટ છે. અપેક્ષા એ પ્રેમની બાય પ્રોડક્ટ છે. તમારી એની इज्जत करनी पड़से. मेरा शिष्य चाहता है कि मैं गुरुदेव के पास जाऊं, तब गुरुदेव मेरे से बात करें. मैं लिखने का पेंटिंग करके मेरे शिष्य के साथ बात करता हूं. मे भी पॉसिबल आपका बेटा, आप घर में बैठे तो आपके पास आ जाए. उनके मन में एक अपेक्षा है, मैं पापा के पास जा रहा हूं, पापा मोबाइल छोड़ के मेरे से कुछ बात करेंगे. उसी टाइम तो मोबाइल में चिपके रहते हो. आपके बेटे को एक लगता है कि पापा को मेरी कुछ पड़ी नहीं है. फरी बार याद राखी लो, प्रेम ऊंचो छे, ऊंचाई वधारवी पड़शे तमारे. प्रेम ठींगणो छे, गर्दन झूकीने वात करता शीखवू पड़शे तमारे. बहु वजन पड़े छे प्रेमनुं, थोड़ी हळवाश उमेरवी पड़शे प्रेममां. अपेक्षा ए प्रेमनी बाय प्रोडक्ट छे, तमारे एनी इज्जत करवी पड़शे. ये कोरोना के माहौल में आप देखो इंडिया में क्या चला है. आपके वहां जो कुछ भी चला है, मगर इंडिया में जो चला, यू कांट बिलीव कि कितना कोऑपरेटिव नेचर, कितना कोऑपरेटिव नेचर. एक लड़की 13 साल की उम्र की, नाम इनका नेत्र. उनके पिताजी नाई का काम करते, बाल कटवाने का मदुराई में. और 13 साल की लड़की ने अपने इर्द गिर्द करीबन 200 मरीज ऐसे देखे कि जो कोरोना से डिस्टर्ब थे. और ये लड़की के पिताजी ने बाल काटते काटते 5 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की थी. अपनी बेटी को IAS बनाना चाहते थे. दिस इज इंडिया. आपके मन में इंडिया की जो छवि है, वो छवि मैं यहां देख रहा हूं इतने दिनों से. वो 13 साल की लड़की अपने पिताजी को कहती कि पिताजी मेरे लिए 5 लाख की एफडी आपने रखी, एफडी तोड़ दो. ये 200 कोरोना के मरीज के लिए, गरीब मरीज है, उनके लिए मेरी 5 लाख की एफडी का व्यय करो, उन लोगों को बचा दो. यू कांट बिलीव. एक 13 साल की लड़की अपनी करियर को छोड़ देने के लिए तैयार. पापा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ये 5 लाख की एफडी तोड़ करके इस कोरोना के मरीज को ठीक करो. पिताजी बाल काट रहे, नाई है, सलून, हेयर कटिंग सलून. और पिताजी ने बोला कि बेटी 5 लाख रुपया कितनी बड़ी मुश्किल से. नहीं पापा, 5 लाख छोड़ो, अभी कोरोना के मरीज को क्लियर करो. और 5 लाख रुपए की एफडी तोड़ करके इस लड़की के पिताजी ने कोरोना के मरीज के लिए सदव्यय कर दिया. यही बात एक पेपर वाला ने उठाई, मीडिया वाला ने. ये बात पहुंची हिंदुस्तान के PM नरेंद्र भाई मोदी के पास. नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात में ये बात रखी. ये बात यूनो में गई, यूनो में. और यूनो से इस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बना करके उसको यूनो में लेक्चर देने के लिए बोला. दिस इज इंडिया. 5 लाख रुपया अपनी करियर पर फुल स्टॉप लगा करके कोरोना के लिए. और सबसे बड़ी बात तो वो थी,
करीबन 6 महीने के पहले गत साल ये एग्जाम्पल मैंने प्रवचन में दिया, और ये एग्जाम्पल में प्रवचन देने के बाद वो मदुरै में किसी ने मेरा प्रवचन सुना। वो प्रवचन वो लड़की के घर जाकर लड़की को सुनाया कि आपके लिए मेरे गुरुदेव ने क्या बोला, क्या आपने कमाल कर दी है। 5 लाख रुपया कैरियर के लिए रखा था, वो तुमने खत्म करके कोरोना के मरीज को ले लिया। और आपको जानने में आनंद होगा, करीबन 10 दिन के पहले वो लड़की का मेरे पे पत्र आया। वो तो मुझे जानती भी नहीं, पहचान भी नहीं, मगर किसी ने बताया ये जो गुरुदेव है वो गुरुदेव ने तुम्हारे लिए बोला, और गुरुदेव जिंदगी भर के लिए प्याज आलू भी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। वो लड़की का 10 दिन के पहले मेरे पे पत्र आया कि मैं और मेरा परिवार जीवन भर के लिए नॉनवेज छोड़ देते। दिस इज द इंडिया। अपेक्षा ये प्रेमनी बाय प्रोडक्ट છે, તમારે એની इज्जत करवी पड़શે। आपका मुझे जवाब नहीं है, फिर भी मैं पूछूं, सच बोलो, इतना जवाब दे दो। आप किसी बायर के साथ बात, आपके बेटे के साथ आपकी बात चल रही है, आपके पिताजी से आपकी बात चल रही है, और उसी टाइम मोबाइल की घंटी बजी, आप पिताजी से बात चालू रख करके मोबाइल को ना बोल देंगे, या मोबाइल की घंटी को न्याय देने के लिए पिताजी से बात खत्म कर देंगे? व्हाट यू विल बी? आपके पिताजी के साथ चल रही बात, आपके बेटे के साथ चलती बात, और उसी टाइम मोबाइल की घंटी बजी, आप बेटे से बात चालू करके उनको बोल देंगे कि मैं फिर बात करता हूं, या उनके साथ बात करके बेटे को बोल देंगे फिर बात करता हूं। तुम टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे? आपके बेटे को उम्मीद थी कि पिताजी मेरे से बात करेंगे, मेरे शिष्यों को उम्मीद रहती है मैं गुरुदेव के पास जाऊं, चाहे कोई भी हो, मेरे गुरुदेव मेरे से बात करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपेक्षा ए प्रेमनी बाय प्रोडक्ट છે, તમારે એની इज्जत કરવી જ પડશે। प्रेमने आदत છે इतिहास સર્જવાની। प्रेम को एक नशा होता है, वो इतिहास पैदा कर देता है। आज मेरे जैसे साधु के जन्म में इतिहास, मैं जीवन में कभी दूर दूर तक सोच नहीं पाता था कि मेरे जीवन में मुनि जीवन आ जाए, मगर ये इतिहास गुरुदेव के प्रेम से मैंने खुद ने सर्जन किया। प्रेम ने आदत છે इतिहास સર્જવાની, थोड़ी बगावत જોઈશે स्वभाव। आप ये प्रेम करना चाहते हो, राग की बात नहीं करना चाहते हो, प्रेम की बात मैंने खुद ने बगावत की थी। ये जीवन ऐसा नहीं मिला। गुरुदेव के प्रति इतना पागल था, आपको मालूम है, मीरा ने बगावत की थी अपने पति के साथ। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होय, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। मीरा ने कृष्ण के साथ बगावत प्रेम किया था। हनुमान ने राम के साथ प्रेम किया था, सबरी ने राम को प्रेम किया था, सुदामा ने कृष्ण को प्रेम किया था, गौतम ने महावीर ने को प्रेम किया था, सुलसा ने महावीर को प्रेम किया था। यही प्रेम की ताकत है। प्रेम ने एक इतिहास बदलવાની તાકાત છે, પણ એને માટે સ્વભાવમાં બગાવત કરવાની તમારી તૈયારી છે। कितने खोखले हैं। आई लव यू बोलना तो बहुत आसान है, मगर वो प्रेम करने के लिए इतनी कंडीशन। और लास्ट बात प्रेम की, फिर से बताऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। प्रेम बहु ऊंचो છે, ઊંચાઈ વધારવી પડશે। પ્રેમ બહુ ઠીંગણો છે, ગરદન ઝુકાવીને વાત કરતા શીખવું પડશે। બહુ વજન પડે છે પ્રેમનું, થોડી હળવાશ ઉમેરવી પડશે જાતમાં। અપેક્ષા એ પ્રેમની બાય પ્રોડક્ટ છે, તમારે એની इज्जत કરવી પડશે। चाहे आपका नौकर हो, चाहे आपका वॉचमैन हो, चाहे लिफ्टमैन हो, बड़ी उम्मीद से आया है, और यदि आप वॉचमैन को प्रेम करते हो तो इनकी इज्जत भी करनी पड़ेगी। तू कौन है ये मत बोलना। प्रेम ने आदत છે इतिहास સર્જવાની, થોડી બગાવત કરવી પડશે સ્વભાવમાં। ધીરજના ફળ મીઠા હોય છે પ્રેમમાં। લાસ્ટ બાત, ધીરજના ફળ મીઠા હોય છે પ્રેમમાં, સબરીની જેમ ચાખવાની આતુરતા જોઈશે। I would like to love you
ये ताकत जब तक मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं किसी को प्रेम नहीं कर पाऊंगा। सेकंड नंबर, बिफोर रिएक्टिंग, व्हाट नेक्स्ट? मर्डर हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। बड़ी उम्मीद के साथ एक व्यक्ति आपके साथ बात करने के लिए आया, बहुत उम्मीद थी, और आपने सीधा बोल दिया, आई हैव नो टाइम फॉर यू। वो रुपया नहीं चाहता था, वो सिर्फ इतना चाहता था, मेरी बात तो कम से कम 10 मिनट के लिए सुन लो। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। और मे बी पॉसिबल वो आदमी ने सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड नोट में लिख के गया था, सिर्फ आई वुड लाइक टू 10 मिनट्स, मगर किसी ने मुझे समय नहीं दिया, मैं मेरे जीवन को समाप्त कर देता हूं। बिफोर रनिंग, व्हाट नेक्स्ट? बिफोर रिएक्टिंग, व्हाट नेक्स्ट? बिफोर रिमेम्बरिंग, व्हाट नेक्स्ट? थर्ड स्टेप, आपका पास्ट कैसा भी हो, चाहे आपकी भाभी ने, चाहे आपके पिताजी ने, चाहे आपकी माँ ने, चाहे आपके पति ने, चाहे आपके बायर ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है, बट व्हाट इज द नाउ? यदि आप रिमेम्बरिंग करते हो, बिफोर रिमेम्बरिंग एक बार सोच लो, व्हाट नेक्स्ट? मान लिया मेरे पिताजी ने मेरे से कोई बदतमीजी की थी, मेरी सास ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मान लिया, मे भी पॉसिबल, संसार है, बद कुछ हो सकता है। और इंग्लिश का एक कोटेशन है, एवरी संत हैज हिज पास्ट एंड एवरी मैन हैज हिज फ्यूचर। हर संत के लिए, हर संत के पास एक गलत पास्ट होता है, हर आदमी के लिए गोल्डन फ्यूचर होता है। मेरा भी पास्ट में भी पॉसिबल बेकार हो सकता है। मैं भी कोई होटल में गया था, मैं भी दीक्षा के पहले पिक्चर देखने के गया था, मे बी, बट व्हाट अबाउट रिमेम्बरिंग? आज मैं यदि याद करता हूं, मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बेटे की शादी थी और मेरे भाई को मैंने पत्रिका भेज दी, जानबूझ करके मेरा भाई नहीं आया था, ये मान लिया, इट इज राइट, आपने याद भी किया, मगर इनका रिएक्शन क्या होगा? अब ये सोचेंगे, मेरे बेटे की शादी में मेरे भाई नहीं आए थे, अब इनके घर प्रसंग आया, मैं भी नहीं जाऊंगा। ये दुश्मनी करने के लिए तुमने याद रखा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जो पास्ट आपके प्रेजेंट की प्रसन्नता का बलिदान ले, वो पास्ट को डिलीट कर दो। जो पास्ट की स्मृति आपके प्रेजेंट की भी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करे, वो पास्ट की स्मृति को डिलीट कर दो। मोबाइल में 3 चीज होती है, डिलीट, सेव एंड फॉरवर्ड। जो स्मृति आपको अभी डिस्टर्ब करती है, उनको, हर स्मृति को डिलीट कर दो। मालूम है उसने तुझे क्या कहा था, होगा, कुछ होगा, मगर अभी मैं नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पालनपुर में मेरा चातुर्मास था, तुम सोच नहीं पाएंगे, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। एक लड़का मेरे पास आया था और लड़के ने बता दिया, गुरुदेव मेरी पत्नी का मैं मर्डर करना चाहता हूँ। नॉन जैन। मगर मैंने बोला, क्या बात करते गुरुदेव? बस वही, पहली बार मेरी पत्नी ने खुद का पास्ट बता दिया मुझे। किसी लड़के के साथ उनका अफेयर चल रहा था, और गुरुदेव मैं राजपूत हूं, हम किसी को माफी देने के मूड में रहते ही नहीं, मर्डर करना पक्का है। मैंने बोला, मेरे पास क्यों आया? यदि मर्डर करना पक्का है तो मेरे पास क्यों आया? तो देखो क्या हुआ। एक रिमेम्बरिंग ये थी, और दूसरी रिमेम्बरिंग देखो क्या थी। और उसने बोला, गुरुदेव आप ऊंजा आए, और ऊंजा के प्रवचन में आपने एक बात बताई थी कि कुछ भी गलत करने का मन हो, अच्छे आदमी के पास राय लेने के लिए जाना। मर्डर करने के पहले गुरुदेव आपके पास आया हूं, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो, और इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट आई कैन डू। और आप समझ नहीं पाते, सब कुछ उनके मन से डिलीट करवा दिया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो स्मृति आपको रिवेंज में ले जाए, वो स्मृति से कम पैक आ जाओ। नो रिवेंज। आज वही तो चल रहा है, एवरेज करीबन आपके मन में यही तो चल रहा है कि
समझ में नहीं आता है। और धन्यवाद तो मैं आप सबको इसलिए देना चाहता हूँ कि इतने दूर मेरी मार्केट वैल्यू तो ऐसे कोई नहीं है, फिर भी तुमने मुझे सुनने के लिए समय निकाला। मेरे से क्या चाहते हो? चारों ओर से कई लोग ये प्रवचन सुनते सुनते, हाँ बराबर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है सब कुछ तुम्हारे पास, घनी बारे में था मंदिर है तुम्हारे पास, मगर एक चीज वहां नहीं है, वहां गुरु तत्व नहीं। कभी मन हो जाए, ये सबसे बड़ी आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, परमात्मा के वचन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे परमात्मा के मंदिर में तुम कितनी बार जाओ, भगवान सर्वथा मौन है, बोलने वाले गुरुदेव है। आपको रिमांड पे भी ले सकते हैं और आपको सही रास्ते पे भी ले जा सकते हैं, और ये ताकत जिस दिन आपके पास आ जाएगी, हाँ, बिफोर रिमेम्बरिंग, एक बार आप चलो व्हाट नेक्स्ट, अकेले व्हाट नेक्स्ट नहीं, मरने के बाद क्या होगा वो नहीं। आप ये सोचते होंगे कि इस प्रवचन का सब्जेक्ट व्हाट नेक्स्ट रखा है तो गुरुदेव ये बोलेंगे मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, फिर कभी बात करेंगे। अभी जीने में क्या हो रहा है उनकी तो पहले बात करो तुम। यदि आप दामा के साथ बोल सकते हो, कभी कभी तो होता है ना, हाँ, सोचने वाला क्या सोचता है, एक आदमी बम्बई में चौपाटी पे गया होगा, सैंडविच लिया, अभी सैंडविच लेने के बाद उनका मित्र उनके साथ था, देखा तो हैरान हो गया, अंदर टमाटर था, ककड़ी थी, वो खा गया, और ऊपर जो ब्रेड थी वो फेंक दिया। अभी ऐसा खाने का टेक्निक उसने पहली बार देखा कि ऐसी भी कोई नई टेक्निक निकली है क्या। और दूसरी बाजू में गया तो भी वही हालत, भेलपुरी पानीपुरी जो भी खाया ऊपर की पूरी फेंक दी, अंदर में जो पानी था वो खा गया। तब उसने पूछा, यार ये बात क्या है, मेरे साथ पहली बार मैं देख रहा हूँ तुझे नाश्ता करते, टमाटर खा गया, ककड़ी खा गया, ऊपर की ब्रेड फेंक दी, क्या बात क्या है। तो उसने बोला, मैं गुरुदेव के पास गया, मैं अमेरिका से आया हूँ, अमेरिका वाला गलत मत लगाना, माफ करना, मगर ये बात का वो अमेरिका से आया हूँ और पहली बार गुरुदेव के प्रवचन में सुना कि कुछ नियम लेना चाहिए, मैंने नियम ले लिया। कौन सा नियम? ऐसा नियम टटड़ी ककड़ी टमाटर खा देना और ये ब्रेड फेंक देना, तो नहीं, नियम ऐसा नहीं, गुरुदेव नियम आपे दो, बारनू खावानू नहीं। माने ककड़ी टमाटर अंदर रहता है वो खा जाता है और ब्रेड फेंक देता हूँ। अभी ऐसे इंटरप्रिटेशन में क्या ठिकाना क्या पड़ेगा। थर्ड नंबर, बिफोर रिमेम्बरिंग, क्या ताकत बन जाती है, वाई वी आर हैप्पी। 52 साल के दीक्षा प्रिय में कई ऐसे प्रसंग बने कि जिसको याद करूं तो अभी भी मन कटु हो सकता है। नहीं, व्हाट नेक्स्ट, ये याद करने के बाद मेरी मानसिकता प्रसन्न रहेगी कि डिस्टर्ब होगी। आपके प्रति मेरा प्रेम बना रहेगा कि प्रेम खत्म हो जाएगा। और यदि लगता है मेरे पिताजी की बात याद करने से, मेरे सास की बात याद करने से मेरे मन में सास के प्रति कटुपन का भाव पैदा होता है, मेरे पिताजी के प्रति कटुपन का भाव होता है, ये रिमेम्बरिंग से मैं खुद को बचाऊंगा, डिलीट कर दूंगा, वो मेमोरी उनको मुझे नहीं चाहिए। અને ગુજરાતીમાં એક સરસ વાક્ય છે, યાદ રાખી લો, સ્મૃતિ એ વરદાન છે, વિસ્મૃતિ ઈશ્વરીય દેન છે। સ્મૃતિ એ કદાચ વરદાન છે પણ વિસ્મૃતિ ઈશ્વરની ભેટ છે। મારું પ્રવચન તમે યાદ રાખો એ કદાચ વરદાન છે પણ તમને કોઈએ ગાળ દીધી હતી 10 વર્ષ પહેલા અને એને ભૂલી જાઓ, આ ઈશ્વરની તમારી પર કૃપા છે। Number third, number 1, before running. Second, before reacting. Third, before remembering. Fourth, before replacing. मैंने भी थोड़े दिन के पहले नी का रिप्लेसमेंट करा है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, नी का रिप्लेसमेंट बराबर होता है, मगर रिलेशन में कभी रिप्लेसमेंट मत करना, रिलेशन में रिपेयर करना। अभी एक माहौल बन चुका है पूरी दुनिया में,
रिलेशन का रिप्लेसमेंट, पति का पत्नी से नहीं बनता है तो वो बनाने का प्रयास करेंगे, मगर रिप्लेसमेंट शुरू हो चुका है। एक नशा, जिस माहौल से कोरोना आगे बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा गति से ये रिप्लेसमेंट की बात आगे चल रही है। ये बंबई में बांद्रा है, डाइवोर्स के केस के लिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 24 घंटे वो बिल्डिंग हाउसफुल जा रहा है डाइवोर्स के केस के लिए। रिप्लेसमेंट बस 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना नहीं जमता है, बस छोड़ो। समाज के बीच में डिक्लेरेशन किया था ये मेरी पत्नी रहेगी, बाप निश्चिंत था, मेरी बेटी शादी करके उनके ससुराल जा रही है। एक लड़की का बाप निश्चिंत होकर के सो जाता था, अभी वो भी बाप निश्चिंतता नहीं उनके मन में। मैं दिल्ली में चातुर्मास करके आया, एक लड़की के बाप ने 3 करोड़ रुपया 12-14 साल पहले की बात 3 करोड़ रुपए का खर्च किया था, फिर भी वो आकर के मेरे पास रो रहा था, गुरुदेव कोई भरोसा नहीं। 3 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी मुझे मालूम नहीं है बेटी कभी ना कभी घर पे तो नहीं आ जाएगी। मेरे शिष्य से मेरी बनती में रिप्लेसमेंट कर दूंगा, रिपेयर करूंगा। और आज की यंग जनरेशन के पास रिपेयर शब्द करीबन निकल गया है। मोबाइल बिगड़ता है नया लाओ, गाड़ी बिगड़ती है नया लाओ, साइकिल बिगड़ी नया लाओ, कपड़े बिगड़े नए लाओ, सब नए लाओ। नो रिपेयर बट रिप्लेस। चलो मान लिया वस्तु के जगत में रिप्लेसमेंट ठीक था, मगर रिलेशन में रिप्लेसमेंट आ गया। और जिस दिन ये आपकी ये मानसिकता आफ्टर वॉट, सूरत में एक पति और पत्नी का डाइवोर्स हुआ था और विहार करते करते मैं एक गांव में आया, उनका बेटा मुझे चिपक करके रोने लगा था। महाराज साहब चाहे गलती मेरी माँ की थी, मेरे बाप की थी, महाराज साहब मैंने कौन सा अपराध किया था। हर बोर्डिंग में गुरुदेव ये लड़के मुझे गोल करके बेटे तेरी माँ भी बेचारी है, तेरा बाप ऐसा है। गुरुदेव मेरा अपराध क्या था? डाइवोर्स लेना 2 मिनट का काम है और उनको दूसरे को स्थान देना वो मामूली काम है, मगर फिर क्या हम इसमें बहुत स्पष्ट है, नो रिप्लेसमेंट बट रिपेयर। जब तक रिपेयरिंग की संभावना है तब तक रिपेयर करते चलो। आफ्टर रिप्लेसमेंट व्हाट? बड़ी गंभीरता से आपको इस सब चीज को सुनना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना पड़ेगा। नानकनी बात करी दूं, आखिरे गुमावेल जिंदगीनो हिसाब मળી ગયો। आखिरे गुमावेल जिंदगीनो हिसाब मળી ગયો। आ कागळનો પૈસો આખી જિંદગી ગળી ગયો। આખરે ગુમાવેલ જિંદગીનો તાળો મળી ગયો। આ ખાલી કાગળનો પૈસો જિંદગીની તમામ તાકાત ગળી ગયો। મારી જિંદગીની તાકાત હતી મારા મનની શાંતિ, મારી જિંદગીની તાકાત હતી મારા ચિત્તની પ્રસન્નતા, મારી જિંદગીની બહુ મોટી તાકાત હતી મારા પરિવારનો, મારા પ્રત્યેનો ને મારો પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ। મારી જિંદગીની તાકાત હતી મારી પવિત્રતા, મારી જિંદગીની બહુ મોટી તાકાત હતી મારું પોતાનું પુણ્ય। मैं प्रेम गुमाव्यो, मैं पवित्रता गुमावी, मैं प्रसन्नता गुमावी અને પરમાત્મા સાથેનું મારું ટ્યુનિંગ હતું, ટ્યુનિંગ ઉપર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ગયું। પુણ્ય, પ્રેમ, પવિત્રતા ને પ્રસન્નતા 4 ચીજ ખતમ થઈ ગઈ અને હવે મને ખબર પડી આખરે ગુમાવેલ જિંદગીનો હિસાબ મળી ગયો। 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में पैर तुम्हारे चलते नहीं है और शांति से बैठने के बाद तुमने देखा, तब ये कैलकुलेशन तुम्हारा मिल गया। आखिरे गुमावेल जिंदगीनो हिसाब मળી ગયો। आ कागळનો પૈસો आखी जिंदगी गળી गयो।
और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, वापिस आने का चांस न हो तब ये पता चलेगा क्या करेंगे तुम। When you will come back, रिवर्स गियर में गाड़ी लेंगे मगर कुछ बचा ही नहीं होगा, फिर करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको बड़े प्रेम से कहता हूं, व्हाट नेक्स्ट, बिफोर रनिंग, बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर रिमेंबरिंग, बिफोर रिप्लेसमेंट, और नंबर 5, बिफोर रिपीटिंग। कोई भी चीज रिपीट करते हो इनके पहले एक बार चेक कर लो, आफ्टर व्हाट नेक्स्ट। पहली बार सिगरेट पड़ दी, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, व्हाट नेक्स्ट। पहली बार तुमने सिगरेट स्मोकिंग कर दी, अभी तक कैंसर बुकिंग नहीं हुआ, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट, कैंसर। आज तुम्हारा कोई सेलिब्रेशन विदाउट वाइन नहीं होता है, और फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट। आपके बेटे की नजर में तुम उतर गए, शरीर में तुमने कैंसर को आमंत्रण दे दिया। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैं यदि कुछ रिपीट करना चाहता हूं, मैं बताऊं, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंडिया का हो, कोई भी प्लेयर क्रिकेट का आउट होने के बाद खुद की वीडियो देखता है। वो वीडियो देख के चेक करता है कि कहां में चुका, और यदि वो इनकी करियर बनाना चाहते हैं, वो एक ही काम पक्का करता है, इस गलती दोबारा नहीं होगी, दावा के साथ। और वो समझता है यदि जिस गलती को लेके मैं आउट हो चुका, यदि वही गलती का रिपीटेशन हुआ, मेरी करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं इतना पूछूं आपको, जिस गलती का रिपीटेशन करियर को खत्म कर देता है, तो जिस गलती का रिपीटेशन कैरेक्टर को खत्म कर दे, वो गलती का रिपीटेशन कैसे चले। आओ, सच बोलो, तुमने कभी ये सोचा व्हाट नेक्स्ट। गुरुदेव मुझे भी कभी कभी चोट लगाते थे, इतना ही कहते, रत्न सुंदर गलती करना। हमारे वहां इंडिया में कई ट्रक चलती है ना, ट्रक के पीछे स्लोगन रहते हैं। एक बढ़िया स्लोगन मैंने पढ़ा था, पाप करो मगर दोबारा नहीं, पाप करो मगर दोबारा नहीं। ये क्या था, नॉट रिपीटेशन। चाहे पाप, चाहे व्यसन, चाहे गलती, चाहे अपराध, एक ही बात, नॉट दोबारा। आप अपने आप को एक ऑब्जर्व करते रहना कि रिपीट, जो जो गलती आपके दिन में कभी ना कभी होती है, ठीक है, मगर रिपीट क्यों, व्हाई, और वो भी जानबूझ के। आप ये मानते हो कि रिपीटेशन में कोई नुकसान नहीं होगा, होगा तब आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। एक आदमी वाइन पीने से मरने के करीब था, उनका मित्र बाजू में बैठा था, और मित्र ने कहा, दोस्त अभी तो जाने का टाइम हो गया, अभी तो भगवान को याद कर ले। अभी उसने बोला, यार 2 घंटे में भगवान मिलने वाले, ये फिर अभी क्या जरूरत है यार। वहां तो जा रहा हूं भगवान के पास। डर निकल गया। 22-24 साल तुम वहां बैठे हो ना, फिर भी आज मौका मिला तो मैं आपको बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग भी काम करते हैं, आपको इनकी साजिश की बात करना चाहता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी का 1 2 3 का प्रोग्राम है। 1 2 3, एक आदमी को नौकरी दो, उनको 2 आदमी की सैलरी दो, और उनके बाद 3 आदमी का काम कराओ। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। 1 2 3, एक आदमी को नौकरी, 2 की सैलरी, तगड़ा पैकेज। और तगड़ा पैकेज के नशे में तुम ये मानते हो कि इतना 40 लाख 50 लाख का पैकेज, मगर 3 आदमी का काम। मल्टीनेशनल कंपनी मालिक को पूछोगे, मैं मेरे परिवार के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बेटे के साथ टाइम शेयर करना चाहता हूँ, नहीं, आप हमारी कंपनी को वफादार हो, आपकी माँ का, आपकी बाप का जो हो, आप हमें मेरे पास ही रहेंगे, और ये पूरी
पूरी दुनिया यही मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे पागल। लड़के लोग ऐसे बोलते अपने बाप को, पिताजी तुमने जिंदगी पर नहीं कमाया, वो 1 महीने की मेरी सैलरी है। मगर बाप भी तो कुछ बोलता नहीं है। बाप को भी मालूम है कि क्या होता है। तो मेरे पास अकेली सैलरी दिखाई पड़ती है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, कम से कम व्हाट नेक्स्ट, एक गलती सच बताओ आज मेरे जीवन में मैं बच गया हूं। 55 साल के दीक्षा प्रिया में मैं ये नहीं कहूंगा मेरे से गलती नहीं हुई है, मगर जानबूझ के गलती करने की बात खत्म कर नहीं। और गुरुदेव ने भी कभी, गुरुदेव गर्मी तब किए, गुरुदेव भी गर्म तब हुए जिस गलती का मैंने रिपीटेशन किया है। वो जब तक गलती सिंगल थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर गलती का जानबूझ के रिपीटेशन किया। और नफट होते, निर्लज होते, जिसके पास कोई शर्म गरम नहीं होती, वो तो गलती करते ही रहते और बच्चा भी करते। एक आदमी कोर्ट में पकड़ा गया, अभी 8वीं बार आया था, 8वीं बार जेब काटते काटते पकड़ा है, वही जज और वही आदमी। और जज ने सिर्फ इनको याद कराया कि आज मेरे सामने तू 8वीं बार आया है। वो जज को बोल रहा है कि आपको प्रमोशन न मिले उसमें मैं क्या करूं। जज को लगा चाटा मार दूं इनको। ये मुझे बोलता है कि आपको प्रमोशन न मिली, इसमें मैं क्या करूं। मान लिया मैं 8वीं बार आया। तो फिर जज ने बोला तेरे बाप को बुला के ला। अभी दूसरे दिन उनका बाप आया और बाप के सामने जज ने बोला कि आपका बेटा मुझे ऐसा बोलता है। क्या बोला? अरे मैंने उसको कहा 8वीं बार जेब काटते काटते तो आया है, तो ये लड़का आपका ये बोलता है। तो बाप ने भी जज को कहा नया नया है, सीख रहा है, हाथ बैठ जाएगा फिर कभी नहीं आएगा। क्या करेंगे क्या? परमात्मा की परम कृपा, आप सबका आग्रह, जो भी संघ, एंड्रो का संघ, ऑस्ट्रेलिया का संघ, दुबई का संघ, यूके का संघ, मेरे सामने जो भी है, जो भी सुन रहे, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। जयेश भाई की भी बहुत मेहनत, सभी की मेहनत, सभी का भाव, सभी का प्रेम, और उनको लेकर के आज आपके सामने ये प्रवचन, करीबन 2 प्रवचन नहीं करता हूं, मगर आपके प्रेम ने प्रवचन करने के लिए मेरा हौसला बढ़ा दिया और लगा कि नहीं आपके सामने फिर से एक बार ये प्रवचन करते रहूं। फरी एक बार તમને કહી દઉં, जिंदगी 3 અક્ષરનું નામ છે। जिंदगी 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર। जिंदगी 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર। એ બંનેનો મેળ થઈ જાય તો નહીં યુદ્ધ નહીં લશ્કર। जिंदगी અને પ્રેમનો જો મેળ પડી જાય तो लश्कर ની ક્યારે જરૂર નહીં પડે। न क्लेश, न संक्लेश, न संघर्ष, न विरोध, न विभाजन, काई नहीं, बस आनंद आनंद। What next? Before running, before remembering, before reacting, before replacing and before repeating, 5 चीज की बात आज आपके सामने मैंने रखी है। बहुत आनंद आया। फिर भी कभी प्रवचन का रिपीटेशन करूंगा, गलती का नहीं। कभी मौका मिलेगा आप सबके सामने, फिर भी कभी आने का मौका मिलेगा तो आ जाऊंगा। वितराग परमात्मा की वाणी नु प्रकाशन करता 1 घंटे के प्रवचन में कहीं भी अन्यथा कहा गया हो तो मीठा में निकलना। साहेब जी, हरीश भाई मेहता बोलू छू, अपने एंट्रोप संघ तरफ थी। हाँ बोलो। आपने चरणों में कोटि कोटि वंदन करिए छे। आपनी वाणी सांभळीने અમે બહુ પાવન થયા છે અને અમારા ઉપર તમે આ કૃપા વસાવી રાખજો સાહેબ। हाँ ચોક્કસ। એક જ મિનિટ લેશું તમારી, અમારી અહીંયાનું તમારું બંને સંકુલ બતાવું છે આપને। એક જ મિનિટ ખાલી। હા, જે અમે 10 જે અમે લોકો 1992 માં આ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે। એક સેકન્ડ સાહેબ। આ અમારું મેડિટેશન હોલ છે સાહેબજી, જે हाँ, बहुत 2000 સ્ક્વેર મીટર નું છે। અને આ આપનું આ દેરાસર
બહુ સરસ બહુ સરસ હા શિખરબંધી છે અને અમને 1992 માં આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો. અમારા શ્રી વિજયભાઈ નું વિઝન હતું આ, અને સુબોર સાગર મારા સાહેબના બ્લેસિંગ અને ફૂલ ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીનું સપોર્ટ હતું, એટલે આ બે કાર્ય પૂરું કર્યું અમે 2007 હા. અને 2007 આપણે અંજન સલાહકાર કરી ત્યાં સુબોર સાગર મારા સાહેબના હેઠળ વિજાપુર, બહુ સરસ બહુ સરસ. અને 2010 પ્રતિષ્ઠા કરી. તમારું હાજી એક સેકન્ડ હાજી આ સાહેબ મ્યુઝિયમ છે અહીંયા આગળ, હા અને એનો પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે, હજી પૂર્ણ કર્યું નથી અમે. બહુ સરસ બહુ સરસ. હા અને સાહેબ તમારું દેરાસર જોઈને એમ થાય છે કે ત્યાં તો નહીં હોય, પણ સપનામાં દેરાસર આવીએ તો બહુ સારું. હાજી હા. અને સાહેબ અમારા આપના બધાના મૂળ નાયક શ્રી શંકેશ્વર પાર્ષદ ભગવાન. બહુ સરસ બહુ સરસ. હાજી બહુ સરસ, ખૂબ આનંદ. હાજી. અને આ વાસ્તુ પૂજ્ય સ્વામી ભગવાન. હા ખૂબ સરસ. સાહેબ આ આદેશ્વર ભગવાન. વાહ, ચાલો તમે દર્શન કરાવી દીધા અમને. હાજી. અને આ મુનીશ્વર બહુ સ્વામી સરસ. ભગવાન. અને સાહેબ આ અમારા માવી સ્વામી ભગવાન. હા હા ખૂબ સરસ. સાહેબજી આના નકશી થોડી આપણે માઉન્ટ આબુની કોપી કરવાની કોશિશ કરી છે અમે. બહુ સરસ બહુ સરસ. 15 વર્ષ લાગ્યા આ બનતા. ઓહો હા. ખૂબ. અને સાહેબજી આ અમારા અધિષ્ઠાયક દેવી શ્રી પદ્માવતી માતા. બહુ સરસ. અને આ શ્રી ઘંટાઘર મહાવીર. હા બહુ સરસ. અને આમાં બધું પ્યોર માર્બલ વાપરવામાં આવ્યું છે, 1.5 નંબરનું. ઓહ, હાજી બહુ સરસ બહુ સરસ. હાજી. સાહેબ આવી કૃપા અમારા ઉપર તમે વરસાવજો. હા ચોક્કસ. સર્વ મંગલ મંગલમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ. જય હિન્દ. હાજી સાહેબ, અમારે બધી ભૂલ થઈ હોય બોલતા કરતા અમે અંતર આત્માથી મિચ્છામી દુક્કડમ કરીએ છીએ આપને. અરે આવી ગયો. સાહેબજી આપની વાણીથી અમને ખૂબ જ લાભ મળ્યો છે, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ આપના પ્રવચનમાં 1000 થી વધારે માણસ જોડાયું હતું. જે કોઈ જોડાયા બધા એન્ટ્રોપ સંઘ, ઓસ્ટ્રેલિયા, દુબઈ, યુકે, યુએસએ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાહેબજી મધ્યન વંદામી. અમે એન્ટ્રોપ સંઘથી જયેશભાઈ આપનો આભાર, પલકભાઈનો, હેમંદ્રભાઈનો અને ખાસ નેહા શાહનો. અને કૌશિકભાઈ વોઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ. કૌશિકભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા હા જયેશભાઈ, કૌશિકભાઈ. 1 મિનિટ, આ છોકરીઓએ ખાલી એક સ્તુતિ નવકાર પ્રિપેર મંત્ર, કરી છે, yes. તરત જ બોલી લેશે. પ્લીઝ નવકાર મંત્ર કરો બેબી. શાસનપતિ શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. આપ સૌને અમારા પ્રણામ. ગુરુદેવની આજ્ञा से ओ